आय रामकृष्णाय ते नमः। तो आज जी हम ये किताब हमारी यही चल रही है, हाउ टू लिव विद गॉड यस इन द कंपनी ऑफ श्री राम कृष्ण। जी और जो आर्टिकल चल रहा है, लंबा आर्टिकल है, वो है हाउ टू अंडरस्टैंड श्री राम। इसको यस बीच बीच में हम ले रहे हैं, और अलग अलग लोगों ने श्री राम कृष्ण को कैसे समझा उसको बताया गया है। अवतार को समझना इतना आसान नहीं है। जी एक बच्चा जो है वो जब क्रिकेट के देखता है तो उसके बाद में कहता है वो तेंदुलकर बहुत बढ़िया खेला, मैं सब जानता हूँ समझता हूँ। तो वो अपने अपना जैसा खेलता है उसके अनुसार वो तेंदुलकर को समझता है। हम अपने मन के अनुसार लोगों को, संसार के लोगों को देखते हैं, समझते हैं। और ठीक है। अवतार जो है वो उनमें जो डिवाइन चीजें हैं, जो दिव्य वस्तु है, उसको समझना अत्यंत कठिन है। स्वामी विवेकानंद बार बार बताना चाहते थे कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। अपने आप को मानव मत समझो, अपने आप को जी दिव्य समझो। अपने हमारे में जो आत्मा है वो मरने वाली नहीं है, सदा सर्वदा विद्यमान है। वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, वो है। उसको बार बार समझने से हम में जो दिव्यता है वो प्रकट होगी, हम जानने लगेंगे कि हम भी दिव्य हैं। तो ये जो पुस्तकें जब हम पढ़ते हैं तो इसका उद्देश्य यह है, श्री रामकृष्ण को समझने के प्रयास में हम अपनी दिव्यता को भी अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करते हैं, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद में अब हम प्रारंभ करते हैं। कहाँ से है? श्री रामकृष्ण इन द आईज ऑफ हिज गुरुज ये एंड तो पंडित, इजंट गुरु इट? एंड द यस अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज समरी कौन करेगा? प्रणाम महाराज जी, मैं कर रहा हूँ। हाँ भैया। शुड आई स्टार्ट महाराज जी? हाँ सर सर। सुबीर करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। My humble pranams to Thakur Mahar Swami ji. My pranams to Swami Brahmeshananda. We have been discussing the chapter How to Understand Sri Ramakrishna. So far, we have seen how Thakur was aware of who he was himself, but for a devotee to know him even slightly, he has to practice a lot of austerities. We have also seen how his relatives viewed him, how the temple officials viewed him, etc. Now we will see how gurus, pandits, brahmos viewed him, how the devotees and the visitors saw him, and most importantly, how his intimate disciples also saw him. Bhairavi Brahmani was a tantric nun and one of Thakur's teachers. When Thakur told her of his divine visions, sleeplessness, burning sensation, loss of outer consciousness, all this, she assured him that this was not madness as people thought, but that he had achieved a state of Mahabhava. These experiences are recorded in the scriptures and was experienced by Sri Radha and Sri Chaitanya also, she said. Thakur felt reassured and relieved. Vaishnava Charan, also a great scholar who had developed a subtle insight because of his sadhana, heartily approved of what Brahmani had said and recognized Thakur as a great spiritual soul. Not only that, he said the 19 spiritual moods mentioned in the scriptures could all be seen in him. When Thakur asked another tantric scholar, Gauri Pandit, what he thought, so Gauri Pandit said, "You are he, by a fraction of whose power the avatar comes into this world." Thakur smiled like a child and said, "Oh, so you outbid him." Then there was Totapuri, we all know, one of Thakur's teachers who attained Nirvikalpa Samadhi after practicing sadhana for 40 years. He was amazed how under his guidance Thakur achieved Nirvikalpa Samadhi in just 3 days. Mind you, these were no ordinary people, and we get an insight into what Thakur was through them. Bhagwan Das Babaji
a very well-known saint from Kalna in West Bengal, had once criticized Thakur because he stood during an ecstasy on the seat of Chaitanya in Kultala, Calcutta. But later on, seeing repeatedly Thakur's ecstasies and bliss and his samadhi, he was full of repentance, because the Mahabhava that he could not understand from reading the scriptures was now being vividly manifested in front of him. He bowed to him, he came to him, and he begged his forgiveness. Then there was Pandit Shashadhar Tarak Chudamani, the great Hindu evangelist. When he met Thakur, he learned from him that one cannot teach people till one receives the command of God. He later prayed to Thakur to bestow at least a drop of devotion, and hearing this, Thakur went into ecstasy as he touched him. Pandit Padmalochan, who was the court Pandit of Maharaja of Burdwan, he recognized the master to be an incarnation of God and wanted to pronounce it to the world. But unfortunately, he soon passed away before he could do so. In addition to this, there were a lot of Pandits who lacked renunciation and purity and who hankered after name and fame. Some came out of their ego to evaluate the master. Master would either walk away from them or by the mere touch, they would be overwhelmed. One such famous Pandit was from Uttarpada in Bengal, who initially was bent on criticizing him. And then once when he visited him and he was sitting on the banks of the river, Ganga, I think, he realized through his meditation who master was. And he ran back and bowed down to him, addressing him as God, praising him with hymns. This is the effect he was having. Then there was another Pandit Jagan Mohan Tarkalankar. This I recall also mentioned in Leela Prasanga, though not in this book. He went in the presence of Thakur with Sharadanandaji's father. And Sharadanandaji's father was afraid that Swami Sharadanandji would be brainwashed by Thakur and taken away and all those things. So he wanted Jagan Mohan Tarkalankar to go and ask him very intricate questions and embarrass him. But when he came in front of Thakur, he realized what a great soul he was. And he begged his father not to ever take him away from there. In fact, he shared this with Girish Ghosh also. Now we come to Brahmos and see how they saw Thakur. One of the first Brahmo leaders he met was Devendranath Tagore, the leader of Adi Brahmo Samaj, Jorashako, Kolkata. Thakur said of Devendranath that he had combined both yoga and bhoga. He had a number of children, and though a Jnani, was also preoccupied with worldly life. He called him King Janak of Kali Yuga. But though he was impressed with Thakur, he was still bound by social customs, and hence after inviting him, he later sent message to Mathur Babu not to send him, as Thakur could not promise that he would wear clothes like a Babu in that meeting. Thakur later on in 1875 met Keshav Sen at Jayagopal Sen's garden house in Belgodiya. There developed a loving relationship between the two till the end of Keshav's life. Thakur later said, "Who will I talk to when you are not there?" Keshav on his part realized Thakur's greatness, and there is an incident when he worshipped him secretly in his shrine room, because he could not do it in front of his disciples, otherwise they would not give him any importance and think that he has strayed from his path. But he knew what Thakur was to some extent. He wrote of Master's life and teachings in several Brahmo journals, and was one of the principal reasons for the privileged classes, the educated classes, even English people visiting Thakur at Dakshineshwar, and especially the youth of Bengal. Trailokyanath Sanyal, a disciple of Keshav, it is shown here,
how he misunderstood Thakur's message, and Girish Ghosh himself later corrected him. Bijay Krishna Goswami, another Brahmo leader, recognized Thakur to some extent. In one of his famous statements, he said, "The roaming about is useless. At other places, I have seen 2%, 5%, 10%, or at the most 25% of him." Him meaning Thakur. But there at Dakshineshwar, I find full 100% manifestation of God. He has attained perfection in all paths and moods. Shivnath Shastri, a leader of Sadharan Brahmo Samaj, he too was impressed by Thakur's devotion, faith, renunciation, and yearning for God. Though later he thought that Master had a nervous disorder when he saw his Samadhi, but he was left speechless when Thakur pointed out to him his irrational thought processes. Though most westernized Brahmos did not understand Thakur, over a period of time, because of his influence, it made them introduce kirtan, dancing, prayers to Divine Mother. Pratap Chandra Majumdar once said, "We did not understand true religion till we met him, and what true spiritual life is." Now we come to visitors and devotees and see what they thought of him, or how did they see him. So to give a vision of how Thakur was, as he approached what kind of a person he was, the initial impression was Thakur was married, but he was not a regular householder. He was a monk, but he did not wear an ochre cloth. He was not shaven-headed, nor did he besmear his body with ashes. He did not smoke hemp. He had no holy marks on his body or wear Rudraksh mala. He did not quote shlokas from scriptures and all that, nor did he distribute amulet and medicines. Instead, like an ordinary person, he seemed to laugh, joke, and stayed in a tidy room. So a lot of people who came to him may not have been able to understand him because of that. And because of that, who would understand that he's an avatar? It's almost as if he had hid himself. Devotees who were pure and simple and with a spiritual insight recognized his divinity. Durgacharan Nag famously said, "Can anyone know him without his mercy, even if one has practiced austerities for thousands of years?" One of the methods of Master to check his devotees' understanding, he would be when he would say to them, "What do you think of me?" We have seen this several times in Kathamrita also, when he asked Master Mahashaya and all these people. He asked this question in various ways to Ramchandra Datta, Girish Ghosh, Purna Chandra Ghosh, Master Mahashaya also. Each answered in his own way of understanding and love. And Thakur was very happy to hear their answers. Among the lady devotees, Gopal Ma, Jogin Ma, Shyama Sundari Devi, who's the daughter of Manomohan Mitra, Golap Ma, Gauri Ma, also saw him as God and spoke in their own way. Ramakrishna Thakur, on other occasions, by hiding his true self, demonstrated to us how to remove one's ego and become humbler than the humblest. We see the example when a poor man came to his room and used very familiar language. He said something like, "Hey Ramakrishna," or something like that, sat on his bed, and then he asked him to prepare a smoke for him. And Thakur rushed to do so until he was stopped by the disciples or the people in the room, the close devotees. He said, "What are you doing?" And Thakur said, "No, what is there?" So he is teaching us how to remove one's ego. It does not matter who the person is. There was a doctor, and there was also a friend of Mathur Babu who mistook him for a gardener. And one of them even asked Thakur to prepare a bouquet of flowers, which Thakur promptly did. They all later learned who Thakur was
and did not say that we did not recognize him and repented. So he was something like that. He hid himself. There was this famous physician who visited Thakur on the insistence of Ramchandra Datta, and who, not believing in Thakur's greatness, said, I will box the ear of this Paramahansa, so-called Paramahansa. But immediately after entering the Thakur's room, Thakur said, have you come to box my ears? In Bengali, Amar ki kaan mule dite escho. Leaving him embarrassed, and he realized his mistake, and what kind of a person he had come in front of. That he was not what in Bengali say, bhondo, or for fraud, or whatever he might have thought. Not everyone, though, was lucky to meet him. There was this engineer who came to his doorstep, but on hearing some things about Thakur, they were all untruths, that he was a madman and all those, he went back. So unfortunately, even after reaching so close to Thakur, he could not have his darshan. Now we come to his intimate disciples. There were two groups, Antaranga and Bahiranga, as we know, inner and outer. He trained the inner circle to carry his message. He told Master Mahashaya in this context that it will be enough to know who I am and who you are. Nothing else is necessary. Then you will not be entrapped by Maya. But Ramchandra Datta and Girish Ghosh, who were of the outer circle, both started proclaiming Thakur an incarnation of God. And the master meaning Thakur ultimately had to forbid them to do so. Only an avatar knows his real nature and no one else. Just like it is mentioned here that only Shankaracharya knew what his real philosophy was. And as Swami Vivekananda himself said, only a Vivekananda will understand what this Vivekananda has done. Ordinary people evaluate a saint or an avatar through their own mental capacity and understanding. Householder devotees understood in one way and the monastic disciples another. Swami Turiyananda said, is it an easy matter to realize that lust and gold are unreal? A man has very limited powers. Despite all his efforts, it finally comes down to God's compassion and grace. Swami Saradananda too wrote that he realized how little he had understood Thakur while writing Leela Prasanga, how deep Thakur was, and he was only floating in the branches. Swami Vivekananda, the greatest of Thakur's disciples, tested Thakur again and again for over 6 years, till he was finally convinced of his divinity and greatness. Swamiji, in fact, said, anyone who has gone to Sri Ramakrishna has advanced in spirituality and will advance or is advancing. What the householder devotees are saying about him, because there was a lot of things the householder devotees were trying to, blow up his image and all that. So he says, what they are saying is not totally untrue. They are only partially true. Each has understood according to his own capacity. Finally, it can be said he was the concentrated embodiment of many previous avatars. He bestowed spirituality according to the capacity of each individual. Not everyone can recognize him. The only way to know him is to live a life of love, renunciation, humility, self-surrender, and meditate on his name and form. But even after all this, what is needed finally is God's grace. That's all, Maharaj. Good. Pranam. Okay, very good. Thank you. Very Well good. done. Very good. Very good. Excellent, So Dada. now, Wonderful. very good, very good. You done very good. So now, shall we take up the questions? Yes, sir. Prepare yourself for your question. नहीं, सबसे पहले शिवानी के question. Shivani has to do some work. She will go ask Ji, the Maharaj. question. Yes, Shivani. Pranam Maharaj. Maharaj, first question on page number 129. Why Ramakrishna's not aware about his stage? Why he asked from his guru or the people?
because at that time he had, avatar also, when he come, they come not suddenly as avatars. They have to do spiritual practices. Sri Ramakrishna, how many spiritual practices he did? Actually, we get this only in Sri Ramakrishna. Even in Ram and Krishna, etc., we don't find them doing spiritual practices. And in Krishna, even a little child, he is doing miracles, killing the demoness, Putana, etc. But here it is clearly shown that even an avatar, when he is born almost like a human or ordinary human being, and he does spiritual practices and attains realization, and also he realizes that he is an avatar. That is why Sri Ramakrishna did so much of sadhana. This is what I have understood. Okay. Okay, Maharaj. Next question, Maharaj. Page number 140. Is avatar is the highest state of consciousness? What do you mean by consciousness? Highest state of consciousness is Nirvikalpa Samadhi. So Nirvikalpa Samadhi and avatar are two different things. महाराज मैं पूछना ये चाह रही थी कि मतलब हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के बाद अवतार होते हैं, अवतार आते हैं। ना मतलब जैसा है कि अगर एक साधक है और साधक को निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई तो वो अवतार नहीं हो जाता। निर्विकल्प समाधि और अवतार के साथ कोई संबंध नहीं है। अवतार के साथ में तो कुछ स्पिरिचुअल पावर्स होते हैं, याद रखो। हाँ ठीक है, मतलब बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। हाँ, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। श्री कृष्ण, श्री रामकृष्ण, श्री कृष्ण और राम, इसमें तो हम निर्विकल्प समाधि वगैरह का कोई वर्णन नहीं प्राप्त करते। नहीं, मैं अपने मन से ये सोच रही थी कि शायद जैसे इस जन्म में उनको निर्विकल्प समाधि हो गई हो तो वो नेक्स्ट जन्म में अवतार बनते होंगे। निर्विकल्प समाधि अगर किसी को हो जावे तो उसके बाद वो मुक्त हो जाता है। उसके बाद निर्विकल्प समाधि के बाद में कोई जीव वापस जन्म नहीं ले सकता, तो उसके बाद मुक्ति का है। अच्छा। इसलिए निर्विकल्प अवतार जो है, बाकी जो साधक हैं वे निर्विकल्प समाधि लेकर मुक्त हो जाते हैं, लेकिन अवतार जो हैं उनको निर्विकल्प समाधि नहीं होती, वे जगत कल्याण के लिए बने रहते हैं। उनके पास शक्तियां रहती हैं, आध्यात्मिक शक्तियां, जिसके द्वारा वे जगत कल्याण करते रहते हैं। और उसके बाद में पुनः जन्म, शरीर चला जाता है, पुनः जन्म लेते हैं। तो निर्विकल्प समाधि का अवतार के साथ कोई लेना देना नहीं। Right. महाराज, ये जो ठाकुर की आरती में हम लोग कहते हैं ना, चित घन काय, तो ये जो कॉन्शियसनेस का पूरा कंडेंस्ड वही अवतार है ना, जो कंडेंस, फुल कंडेंस्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ, प्योर कॉन्शियस हाई। उसमें क्या है, हाईली मैनिफेस्टेशन, पूरा मैनिफेस्टेशन है। हम लोगों में थोड़ा सा 5% मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। वो है प्योर कॉन्शियसनेस, है जो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, यानी चित घन का, यानी परमात्मा स्वरूप, ये समझ। हाँ, परमात्मा स्वरूप, वही है। शिवानी पूछना चाह रही है। नहीं, वो एक्सपीरियंस की बात करना पूछ रही है। अच्छा, ओके। Thank you, Maharaj. Next question, last on page number 141. Ishvara Kotis are also avatars? Yes. नो, ईश्वर कोटि या तो ऐसा है कि कुछ लोग तो साधना के द्वारा ईश्वर कोटि प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ लोग उच्च कोटि के साधक हैं, वे पुनः जन्म लेते हैं एक अवतार जैसे, लेकिन अवतार नहीं होते वो लोग।
कहते हैं ना कि अवतार जब आते हैं तो उनके साथ में उनके अंतरंग पार्षद इत्यादि आते हैं जो ईश्वर कोटि होते हैं। तो उनको अवतार तो नहीं बोल सकते हम। नहीं। हाँ, वो उच्च कोटि के साधक थे, वो मुक्त नहीं हुए थे, पुनः जन्म ले लिया अवतार के साथ में आने। महाराज जी पार्शियल, लेकिन उनको अवतार कहना ठीक नहीं होगा। वो पार्शियल अवतार एक अपने आप मैनिफेस्टेशन, में एक कैटेगरी हो गई। हाँ भाई सुबीर बोलो। वो क्या ठाकुर कहते थे ना, पार्शियल मैनिफेस्टेशन ऑफ अर्जुन, पार्शियल मैनिफेस्टेशन ऑफ सो एंड सो, वो बोलते थे अब भाई अवतार ये को। बड़ा मुश्किल है ये पार्शियल ये समझना मैनिफेस्टेशन। बहुत मुश्किल है। हाँ अच्छा महाराज, ये हम्म, बस ये बता दीजिए कि ईश्वर कोटि का मीनिंग क्या होगा एग्जैक्ट? ईश्वर कोटि एक कैटेगरी हो गई ना, हम्म, कैटेगरी हो गई। एमडी डॉक्टर्स, जो अच्छा डॉक्टर्स एमडी हैं उनको सब एमडी डॉक्टर बोल दिया। ठीक है महाराज, ठीक है, अरे थैंक ऐसे यू। ऐसे क्वेश्चन पूछे, हम क्या समझेंगे हम लोग। हे भगवान, इतने बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन मत पूछा करो। थैंक यू महाराज, प्रणाम। ठीक है, महाराज नमस्कार। लीला प्रसंग में इसके बारे में अच्छा डिस्कशन भी है। बहुत डिस्कशन है लीला प्रसंग में, हाँ, उन्होंने ये काफी डिस्कस ईश्वर किया है। कोटि ईश्वर के जैसे नहीं होते, क्योंकि वो सृष्टि स्थिति लय अगर नहीं कर सकते, परंतु उसमें सत्व गुण का पूरा पूरा प्रादुर्भाव होता है। हाँ, उसमें क्या हुई तो उन्होंने कहा कि वो पूरा अवतार, ज्ञान रहता है, पूरा ज्ञान। हाँ, ईश्वर कोटि अवतार नहीं होते। छह अवतार में नहीं है ना होते। हाँ, महाराज जी? ईश्वर कोटि टोटल 6 है ना? नहीं, मैं ठाकुर के शिष्य में हाँ, 6 है। ठाकुर के शिष्य में ही बोल रही हूँ। टोटल 6 है ना? हाँ, स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, और ये प्रेमानंद जी महाराज, और योगानंद जी महाराज, और ये पूर्ण। हाँ, निरंजनानंद जी महाराज, और पूर्णचंद्र घोष। ठीक है। 6। अरे बाप रे, आप लोग तो सब समझते, मेरे को समझ में नहीं आता है ईश्वर कोटि। अच्छा सुबीर, चलो क्वेश्चन। महाराज पहला सवाल है पेज 133 में। There it says, I want to call on God. ठाकुर कहते हैं through all the moods, through Shanta, Dasya, Shakya, Vatsalya, Madhura. We see him in Dasya Bhav and the mother and son Bhav also. But what are the examples of the other Bhavs which Thakur is mentioning here? We never. ऐसा है कि स्वभाव भाव को मैनिफेस्ट करने के बाद में, जी वो उनका हाईएस्ट रियलाइजेशन करने के बाद में श्री रामकृष्ण वो वात्सल्य भाव में रहे थे बेसिकली। जी लिव्ड एट दैट वात्सल्य भाव, यानी भगवान को, माँ को, जगदम्बा को माँ समझ के उसमें रहे थे। जी लेकिन अगर आप उसको लीला प्रसंग पढ़ेंगे तो वहां पे सबका वीर भाव का भी वर्णन है। वीर हाँ भाव में क्या है कि अपने को पुरुष और भगवान को अपनी स्त्री समझ, हम्म हाँ हाँ, और उसमें लीला प्रसंग में पाएंगे। हाँ मधुर तो भाव। मधुर भाव हुआ ये, मधुर भाव। हाँ। मधुर भाव हुआ, वीर हम्म भाव हुआ, दूसरे अलग अलग हम्म भाव हैं। फिर तो ये दास्य भाव। दास, वो एक तो दास्य भाव में तो जनरली रहते थे, हाँ, वो तो हम लोगों दास्य ने। या हाँ वात्सल्य भाव में हाँ जनरली रहते थे। हाँ लेकिन अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा विभिन्न भावों का वर्णन वहां पे दिया गया, डिटेल नहीं दिया गया। हम्म तो ये महाराज, वो और साधना में उसके पोर्शन को पढ़ोगे तो उनके अन्य साधनाओं में ये सब मिल जाए। जी जी महाराज उनके शरीर में भी सब बदलाव आ जाता था। हाँ, आता था ना। हाँ, तो जैसे जैसे जो जिस बात में वो जिस साधना भाव में रहते थे। करते थे। हाँ हाँ, जैसे वो मधुर भाव में तो हनुमान जी में उनको ये नंबर वासित का थे। मेंसेस भी हो गए। मेंसे हाँ स्टार्ट हो गए थे। हाँ हाँ। हाँ यस ये बहुत ऊंची बात हम लोग नहीं समझ पाएंगे। हो गया। हाँ हम्म महाराज ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, ऑन पेज 131 ऊपर में ही लिखा है, ठाकुर कहते हैं पद्मलोचन वॉज सच ए ग्रेट पंडित बट ही स्टिल हैड सो मच फेथ एंड डिवोशन। मतलब एक तरफ कह रहे हैं कि ही वॉज ए ग्रेट पंडित, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उसके बावजूद उनमें इतना फेथ और डिवोशन था। तो मेरा कहना है, डज इट मीन बीइंग ए पंडित डज नॉट ब्रिंग फेथ एंड डिवोशन, एंड इफ सो व्हाई? हाँ,
because being a pandit is intellectual development. देखिए, एक्सीलेंस ऑफ इंटेलेक्ट, बुद्धि, जी विचार की बुद्धि का। तो एक आर्टिकल लिख रहे हैं, बहुत सारा आर्टिकल लिख दिया, किताब लिख दी, ये सब लिखा, बढ़िया लिखा, लोगों ने कहा वाह कितनी अच्छी किताब लिखी है, उसका रिव्यू हो रहा है, सब कर रहे हैं, इतना बड़ा पंडित है। तो ये पंडित जो है ये इंटेलेक्ट का एस्पेक्ट है, बुद्धि का एस्पेक्ट है, रीजन का एस्पेक्ट है। इसमें और क्योंकि जहाँ तक भक्ति है, इमोशन है, ये हार्ट का है। जी इमोशन एंड इंटेलेक्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये याद रखो। जी महाराज, हाँ, मैं ये क्लियरली रखो, बस उससे दोनों का संबंध नहीं है। मैंने इस सवाल को और इसलिए किया था महाराज, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आर्टिकल स्वामी चेतनानंद लिखते हैं कि अगर डिवोशन डेवलप करना हो किसी भगवान से, इफ यू हैव टू लव गॉड, देन उसको और तुम बेहतर जानने की कोशिश करो। स्वामी चेतनानंद दिल्ली में आए थे, एक भक्त के घर में यही सवाल उनको पूछा गया था, तो उन्होंने यही जवाब वहां भी दिया था कि इफ ए लवर वांट्स टू नो लव द पर्सन मोर, तो उसके बारे में जितना जानेगा उसके प्रति उतना उसका लव बढ़ेगा। तो इसी प्रकार तुम ठाकुर को जितना जानोगे, जितना उसके बारे में पढ़ोगे, तो उतना डिवोशन और लव डेवलप करेगा। नॉट नेसेसरी। बहुत सारे हम लोग तो कितना जानते हैं ठाकुर के बारे में, लीला प्रसंग कितना पढ़ते हैं, आरती पढ़ते हैं, क्या भगवान के ठाकुर के प्रति प्रेम हुआ है क्या? कितना प्रेम हुआ है? महाराज अट्रैक्शन तो और बढ़ता है ना। दूसरी बात ये भी है, अगर जो कोई व्यक्ति है तो बिना अट्रैक्शन के भी ठाकुर को फोटो देख के भी अट्रैक्ट हो जाएगा, वो जी महाराज, छोटी छोटी लीलाओं को देख के अट्रैक्ट हो जाएगा, हाँ, उनके बारे में इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करने की उसकी इच्छा नहीं होगी। ये भी ठीक ऑफ कोर्स ये भी है कि जो लोग ठाकुर को प्यार करते हैं वो भी ठाकुर को यदि अधिक समझने के लिए और इंटेलेक्ट करना चाहते हैं, आर्टिकल लिखना चाहते हैं, ये भी हो सकता है दोनों। हाँ हो सकता है, बट ये दोनों अलग भी हैं, ये याद। हाँ हाँ हाँ, जनरली अलग ही होते हैं जी। हाँ, जनरली अलग ही होते। ठीक है महाराज मास्टर महाशय भी यही प्रश्न पूछे थे ना ठाकुर से, क्या ये दोनों एक साथ हो सकता है कि भक्ति और ज्ञान, ज्ञान मिश्रा भक्ति एक साथ हो सकती है क्या? ठाकुर चुप रहे, कुछ बोलते नहीं, मतलब बोला नहीं उन्होंने, चुप रहे, फिर बाद में बोलता है, बहुत कम को होती है। हाँ। कथामृत में है महाराज। that answers the question also, the same thing. ठाकुर said the same thing जो महाराज जी बोले। हाँ। ठीक, प्रणाम महाराज, that's all। चलो दिलीप भाई। हाँ प्रणाम महाराज जी। महाराज जी पहले ये एक सवाल मेरा ये था कि शांत भाव क्या होता है? ये जो 5 भाव बताए हैं, दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव, मधुर भाव, ये शांत भाव स्वरूप में लिखा है। पहले ये बताओ दास्य भाव क्या होता है? जी सम्मान का। साख्य भाव तो ये है महाराज जी कि दास्य भाव क्या है? दास्य हाँ, भाव, दास्य भाव ये है कि हमेशा ये करना कि मैं तुम्हारा दास हूँ। अच्छा 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 अच्छा, है ना। हाँ, जैसे हनुमान जी। वात्सल्य भाव हुआ कि मैं ठाकुर भगवान की माँ हूँ और भगवान बच्चे हैं, हाँ, ये वात्सल्य भाव हो गया। हाँ। हो गया ना दिलीप भाई? नहीं नहीं महाराज जी, ये तो साख्य भाव हुआ, दास्य भाव। मेरी बात सुनते जाओ, मेरी बात सुनते जाओ ना। कौन बोल रहा है? बंद करो। ए शिवानी, निवेदिता निवेदिता बंद करो। दिलीप भाई। हाँ जी महाराज जी। जी हाँ, अच्छा, दास्य भाव समझ गए? हाँ, दास्य समझ में आया, साख्य समझ में आया, वात्सल्य आया, समझ में आ गया ना? अच्छा अच्छा, बस ठीक है। हाँ, अब कोई भाव नहीं, हाँ, कोई भाव नहीं। ओके, अच्छा अच्छा। फिर भी हम जब भगवान को प्यार करते हैं। हाँ, तो कोई भाव नहीं तो ये ये शांत भाव हो गया, शांत भाव होना। तो कोई भाव नहीं, इसको शांत भाव। महाराज जी बिना भाव के तो कैसा किया जा सकता है क्या प्रार्थना, या क्यों? तो क्या? हम तो ठाकुर के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारा कोई भाव नहीं है। न तो हम पिता समझते हैं उनको, न माँ समझते हैं,
हम तो रोज जाते हैं, प्रणाम करते हैं। नहीं हमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो भगवान हमारे पिता है या माता है, कुछ नहीं। नहीं, ये अच्छा, ये प्रार्थना है ना, तमेव माता च पिता तमेव, हाँ तमेव जी, बंधुश्च सखा हाँ तमेव, जी, तमेव स्मृत्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव, है ना। हाँ 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 प्रभु तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही जी, मेरे बंधु हो, तुम ही सब कुछ हो। जी। तो हाँ, ये बिना सब मिला दो तो क्या हो जाएगा? महाराज जी, एक मिनट। यदि कोई भाव नहीं है तो यदि हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो कैसे मिलता है? बिना भाव के तो मिल ही नहीं सकता। आज हम अरे स्वामी सड़क में, सड़क ब्रह्मेश्वरानंद पे जी चल से मिलते हैं। अच्छा, ब्रह्मे दोस्ती हो जाती है ना बीच में, कभी कभी दोस्ती हो गई। नहीं, पर बिना भाव के किसी से, यानी बिना भाव से मिलेंगे, इसका अर्थ ये हुआ कि अनजान व्यक्ति से मिल रहे हैं। हाँ, हाँ, ये नहीं, बात आई थी ना। अनजान से नहीं, और उसके बाद में सब जानना भी हो गया, लेकिन भाव नहीं हुआ। भाव तो मन की बात है, चलो भाव महाराज। तो हृदय की बात है। हाँ और जानना मिलना है, वो इंटेलेक्ट का भाव जी, चलो जी महाराज जी, समझ। है। नॉट सेटिस्फाइड है। जी महाराज जी, अब मैं सवाल पूछता हूँ मेरे। Maharaj, it can be said that it is just a feeling of attraction and it cannot be given a name. That's all. Just meeting, just you like him, that's all. हाँ, तो like is not a भाव। हाँ, Like, liking is like भाव। yes, ये when you ये say I like him, it's a जैसे भाव। कथामृत में है महाराज, ठाकुर जी भी बोलते हैं कि ऋषिदेर शांतो भाव। हाँ, शांत भाव। जी यही तो बात हो रही है, दिलीप भाई को यही क्वेश्चन है कि शांत भाव क्या। जी, हाँ जी। चलिए महाराज जी, क्वेश्चन नंबर 1। महाराज जी, there are many who have come before Ramakrishna Dev, like Bhairavi Brahmani, Totapuri, Vaishnav Charan, etc. And they all were spiritually high and divine. Am I correct? You call it spiritually high, why do you call divine? Acha, I see. Maharaj ji, if they are spiritually high and not divine, then further, why Master told Bhairavi Brahmani about his divine visions, loss of outer consciousness, sleeplessness, burning sensation, and other physical changes that had happened to him? It means Bhairavi Brahmani knows more than the Master. Yeah, understand, intellectual understanding. So intellectually, Bhairavi Brahmani knowing more than. हाँ, इंटेलेक्चुअली वो जानती थी कि साधना होने पे, ऊंचा आदमी होने पर, डिवाइन होने पे हाथ हाथ कांपने लगता है, और पसीना आने लग जाता है, समाधि हो जाती है। ये हाँ, उसको इंटेलेक्चुअली उसको मालूम था, इसलिए उसने पहचान लिया। एक मिनट महाराज जी, बिल्कुल सही। आपने कहा कि इंटेलेक्चुअली डिवाइन होने से उसने पहचान लिया। अभी इसके पहले आपने से कहा था कि दे आर हाईली स्पिरिचुअल बट नॉट डिवाइन। अभी आपने कहा। हाँ, स्पिरिचुअली, हाँ। हाँ अरे तो डिविनिटी, डिविनिटी ने दिव्यता, हाँ दिव्यता यानी भगवान का अंश। जी जी, तो और नहीं अभी। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है साधना की उच्च अवस्था। हाँ वो डिवाइनिटी का अंत नहीं, अंत का नहीं है स्टेट। बराबर, अभी आपने यही महाराज जी कहा हाँ, कि इन ये लोग। देखो, डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी को अलग करो, हाँ बराबर जी। बस। ओके, तुम्हारे क्वेश्चन में डिविनिटी मत लाओ। मेरे क्वेश्चन डिविनिटी नहीं लाता हूं तो फिर ये भैरवी ब्राह्मणी से ठाकुर ने ये अपने प्रॉब्लम्स क्यों पूछे? वो पूछे तो उसका जवाब उन्होंने दिया, मिस सी मस्ट हैव सम। बिकॉज वो जानती थी कि आध्यात्मिक साधना के, इंटेलेक्चुअली उसने शास्त्र सब पढ़े थे। अच्छा, तो ये इसकी स्पिरिचुअलिटी के अंदर ये सब समझ में आता है, डिविनिटी। हाँ, साधना, इंटेलेक्चुअली साधना से वो सब पढ़े थे, समझते थे उसने। हाँ ऐसे बहुत सारे लोग थे, उन्होंने स्वामी ठाकुर को पहचाना था, और इंटेलेक्चुअली पहचाना था, कहा था कि आप अवतार हैं, महान हैं। जी, और उसके बाद में उन लोगों ने साधना की थी और डिविनिटी का एक्सपीरियंस किया था। हाँ हाँ, अच्छा exactly, Maharaj. हाँ. जी।
They had not personally experienced it at that point of time, but they knew it intellectually and instinctively. यही है ना महाराज कि वो हाँ वही 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 इंस्टिंक्टली जानते थे, इंटेलेक्चुअली जानते थे, लेकिन पर्सनली तो उन्होंने भी इसीलिए तो ठाकुर ने तो प्रेरणा दी उन लोगों को। अरे इंटेलेक्चुअली बड़े बड़े विद्वान हो, पंडित हो, उन्होंने मेहदी को पहचान लिए, साधना तो कुछ करो, तुमने तो कुछ छपाया नहीं। जी। अच्छा महाराज जी, इसका कंटिन्यूएशन में जो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा उसका मीनिंग फिर समझा दें। ही आस्क्ड रिपीटेडली, मदर व्हाट आर दीज थिंग्स दैट कीप हैपनिंग टू मी, एम आई मैड रियली, हैव आई डेवलप्ड अ टेरिबल डिजीज ऑफ बाय होल हार्टेडली कॉलिंग ऑन द डिवाइन मदर? ये क्या है? यानी ठाकुर पूछ रहे हैं कि माँ, लोग मुझे पागल समझते हैं क्योंकि ऐसा अलग अलग प्रकार का व्यवहार करता हूँ, कपड़े खोल देता हूँ, लोग कहते हैं अरे पागल है ये। तो क्या माँ सचमुच में भगवान का नाम लेते लेते मैं पागल हो गया क्या? ये उन्होंने पूछा भैरवी ब्राह्मण से। तो क्या हाँ, हिंदी में? नहीं 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 महाराज जी, कॉलिंग ऑन द डिवाइन मदर, तो यहाँ पे इन्होंने डिवाइन डिवाइन कॉलिंग मदर, अपॉन यानी माँ जगदम्बा को पुकारने से, भगवान का नाम लेने से। अच्छा भगवान का नाम लेने से इन्होंने पूछा। ओके महाराज, माय सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर 19 मेन स्पिरिचुअल मोड्स? ऐसा है कि ये भागवत, ये इसमें एक, हाँ, ये ये वैष्णव संप्रदाय में उनकी हाँ साधना में अलग अलग प्रकार के बात बताते हैं कि जब साधना करता है आदमी तो जी हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, पसीना आने लग जाता हाँ है, हाँ आंख हाँ खुली रह जाती है, भूख जी नहीं लगती है। ऐसे ऐसे करके 19 प्रकार के चीजें उसके शरीर और मन में होते हैं। ओके अच्छा अच्छा उसको यहाँ बताया, इस केवल बताया ना, ही नहीं कहीं वर्णन को देखना हाँ पड़ेगा, कोई शास्त्र में देखना पड़ेगा। जी हाँ, ये इन्हें बता, विच सो फार हैड बीन मेंटेन मैनिफेस्टेड ओनली इन राधा एंड चैतन्य, बस राधा। ये राधा और चैतन्य जैसे उच्च कोटि के संतों में ही ये हाँ ये इतने 19, प्रकार के भाव यानी ये होते हैं, शारीरिक और मानसिक साइंस आते हैं। ओके अच्छा 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 यस। अच्छा नाउ पेज नंबर 130, my बहुत small question, why master wants to testing all? मास्टर सबको, मास्टर यानी ठाकुर, ठाकुर सबको हाँ टेस्ट क्यों करना चाहते थे? पूरा करो, हाँ पूरा पढ़ूं? तुम्हारा सेंटेंस बोलो कहाँ से किया है। Yeah. Gauri gravely replied, does Vaishnav Charan call you an avatar? I consider that an understatement. I believe you are he, by a fraction of whose power the avatars come from forth to the world in every age and accomplish the mission. The master smiled and said, ah, so you outbid him. What do you find in me that leads you to entertain this idea? मेरा क्वेश्चन क्या है इसमें? वो Why कहते master? हैं हाँ कि भाई वैष्णव चरण मुझको अवतार बोलता है, तुम क्या हाँ समझते हो? तो क्या, अरे केवल अवतार बोलता है? अरे तुम तो वो हो जिससे अवतार होते हैं, यानी परमात्मा, परमात्मा स्वरूप हो, तुमसे ही बार बार अवतार होते हैं। हाँ ये बोल दिया उन्होंने उनको। श्री हाँ रामकृष्ण की और भी महानता को बता दिए कि तुम केवल अवतार ही नहीं हो, तुम तो हाँ अवतार के भी अवतार, अवतार के भी अवतारों के भी गुरु हो, पिता हाँ, हो। ये अच्छा बता अच्छा और कुछ। राइट जी जी हाँ। Next question number 4, when master got samadhi in 3 days, then why Swami Vivekanand took 6 years? जबकि वो ईश्वर कोटि के ही थे। नहीं, और अगर दिलीप भाई साधना करेंगे तो कितना लगेगा टाइम? 16 जन्म लगेंगे। 16 जन्म लगेंगे वो 100, तो हाँ फिर नहीं ईश्वर कोटि को 6 साल, 6 साल लगे। हाँ
और जो अवतार हैं उसको भी तो टाइम लगा, एक दिन नहीं, में तो नहीं उनको हुआ। 3 दिन लगे, उनको 3 हाँ, दिन लगे। 3 दिन लगे तो। हाँ, उसमें साधना की सारी उनका जो मन था वो सब जो था वो बिल्कुल परफेक्ट था ना। जी, स्वामी विवेकानंद का इतना परफेक्ट तो नहीं था। ओके, राइट जी। अच्छा महाराज जी, ये यहाँ कंटिन्यूशन, मेरे को एक अलग सवाल पूछना। कल आपके जो प्रवचन सुना था उसके अंदर से मेरा एक सवाल निकलता है कि जब स्वामी जी में ठाकुर की शक्ति आ गई तब ठाकुर फकीर हो गए, है ना, उनमें ये शक्ति सब खत्म हो गई। और जब शक्ति खत्म हो गई तो वो जो 2-3 दिन रहे होंगे, ही वॉज ए सिंपल मैन। हाँ, डिसिपल मैन या। सिंपल मैन, हाँ, ओके। अच्छा, देन माय अनदर क्वेश्चन कि जब संपूर्ण ठाकुर की शक्ति स्वामी जी में आ गई तो हम ये कह सकते हैं कि उसके बाद स्वामी जी अवतार पुरुष हो गए, क्योंकि ठाकुर हाँ, हाँ, अवतार हाँ, पुरुष। हाँ, 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 हाँ। राइट, अवतार हो गए। अच्छा, और अमेरिका में जब गए थे तो अवतार थे। ओके, अच्छा, और वहां पे कुछ लोगों ने तो उनको एक्सेप्ट किया अवतार। एक कॉन्वर्सेशन आता है, कहीं पे रहते थे, जिस घर में मकान में रहते थे, जी, तो उसमें एक लेडी थी, लेडी थी। तो उसने स्वामी जी के बारे में, उसको उसकी एक सहेली ने बात की कि ये कैसे आदमी है, क्या कर रहे हैं तुम, ऐसा क्यों उसको छोड़ देते हो, कुछ बोलते नहीं हो, करते नहीं हो। हाँ, तो उसने कहा कि बट ही इज एन इनकारनेशन। आई सी, हाँ, वहां पे भी लोगों ने अवतार को, स्वामी जी को अवतार के रूप में स्वीकार। महाराज जी एक छोटा सवाल और आता है कि जब स्वामी जी। एक मिनट महाराज जी, ये जो पूर्णमद पूर्णमिदम हम लोग बोलते हैं ना, हाँ हाँ, तो यस, महाराज जी मुझे लगता है कि उन्होंने ट्रांसफर तो कर दिया स्वामी जी को, हाँ, लेकिन उनका खुद का पावर कभी खत्म नहीं हुआ। ऐसा तो हो सकता है ना महाराज? नहीं, बिकॉज ऐसा तो फिर हमारे हमारे में भी, हम कुछ भी नहीं है फिर भी हमारे में पावर तो है। नहीं, मैं ठाकुर की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं बिकॉज यही बोल रहा हूँ कि हमारे में भी है, लेकिन हमारे में मैनिफेस्टेड नहीं होता। उसी प्रकार ठाकुर में भी था, वो जब उन्होंने दे दिया तो उसके बाद मैनिफेस्ट उसमें नहीं होगा। जी, इट इज अच्छा, ए क्वेश्चन ऑफ मैनिफेस्टेशन। पूर्ण मतलब मतलब तो सब जगह है। पूर्णमेवा अवशिष्यते नहीं है। अरे पूर्ण, हाँ, तो सारे जगत में तो पूर्ण ही पूर्ण है। अच्छा, पावर्स। बट जी, मैनिफेस्टेशन की बात तो इस श्लोक में नहीं कही है। जी जी जी, मैंने स्टेशन की नहीं कही। राइट। ओके महाराज। महाराज, महाराज जी, जैसे वहाँ अमेरिका में जिन लेडी ने ये पहचाना कि ये अवतार है, तो इट मीन्स कि वहां पे भी काफी स्पिरिचुअली डेवलप्ड लोग थे उस जमाने में, हु कुड इसीलिए ब्रिंग। तो स्वामी जी गए और इतना 3 साल उन्होंने प्रीच किया। फालतू लोग होते तो कैसे करते। अच्छा, ओए, जी। My next question, page number 130. Sir, philosophy has dried up my heart. Please bestow upon me a drop of devotion. Please explain the meaning. ये क्या है ना, ड्राई? किसने बोला है ये, वो देखो। हाँ, ये मैं एक सेकंड महाराज जी, 130, पेज नंबर 5। हाँ, रामकृष्ण टोल्ड पंडित ससाधर तारक चुड़ामणि, तारक चुड़ामणि, हम्म, Ramakrishna told Pandit Sasadhar Tarak Chudamani, the great Hindu तर्क colonialist, चूड़ामणि। हाँ, भक्त नहीं, तारक चूड़ामणि, भक्त चूड़ामणि नहीं है, that one अच्छा, cannot teach people until one receives a command from God. Sasadhar was overwhelmed by the master's renunciation, purity, longing, and ecstasy. He went to Balram's house and prayed to the master with folded hands and tearful eyes. Sir, philosophy has dried up my heart. Please bestow upon me a drop of devotion. The master went into ecstasy and touched the Pandit. अच्छा, हिंदी गुजराती है इसका, पढ़ा तुमने गुजराती नहीं पढ़ा? हाँ, गुरुजी पढ़ा मैंने महाराज। उसमें नहीं समझ में आया, सीधी बात है ये तो।
अरे ये मेरा फिलॉसफी पढ़ के हाँ मैं हूँ, मेरा हृदय जो है वो हाँ सूख गया है। फिलोसफी 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 में मेरा हाँ हृदय जो है वो तो सूख गया है। जी सब हृदय में से मेरा प्रेम चला गया है। हाँ इतना पढ़ेंगे, इतना जूम मीटिंग करेंगे तो सब साफ बड़ा बुद्धिमान हो जाएंगे, अकल हो जाएगी, लेकिन हृदय का जो प्रेम है भगवान के प्रति वो सब चला जाएगा। बाप रे। वो कहा कि मेरा हृदय तो सूख गया है, कृपया मेरे को कुछ एक बूंद वो एक बूंद भक्ति मेरे को दे दो। हाँ महाराज जी, मेरा वही यहाँ पे सवाल है कि क्या फिलोसॉफी से आदमी ड्राइव हो जाता है क्या? और क्या होता है और क्या। फिलोसफी में? और क्या होता है? बुद्धि की बात होती ही है। मैंने एक तर्क किया, तुमने दूसरा तर्क किया, मैं थोड़ा समझा दिया, तुमने समझ समझा दिया। भगवान का भजन तो होता नहीं, भगवान से प्रेम तो होता नहीं, फिलोसफी से होता है क्या? बट फिलोसफी लीड्स अस टू द तो वह गॉड। लीड हो गया, वहां तक ले जाती है, उसके आगे तो जाना पड़ेगा ना। गेट तक ले जाती है, अच्छा दरवाजे तक ले गई, उसके बाद अंदर मंदिर में तो घुसना पड़ेगा। जी ओके। मंदिर में घुसने के बाद में तुम पूजा करते हो, वहां बैठ के तुम शास्त्र थोड़ी पढ़ते नहीं हो। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराज माँ के में आरती, माँ के जो ये प्रणाम मंत्र में हम लोग करते हैं ना, प्रेमैक बिंदुम चिरदग्ध चित्ते, वैसा। चलो चलो आगे बढ़ो। ओके महाराज जी, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज योगिक विजन विच द मास्टर हैड? इट इज डिफरेंट फ्रॉम समाधि, इज इट? समाधि, समाधि भी योग उच्चतम योगिक विजन को समाधि बोले। क्या फिर उसके से महाराज? नीचे नीचे बहुत सारे दर्शन होते हैं। हाँ समाधि नहीं हुआ तो भी दर्शन हुआ, अच्छा हृदय में आनंद का अनुभव हुआ, हाँ थोड़े से किसी देवी देवता का दर्शन हुआ, हाँ कान में थोड़ी सी ध्वनि, ओंकार की ध्वनि सुनाई महाराज दी। जी प्लीज एक मिनट। संजय जी, ये थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, प्लीज देखो, देखो ना। हाँ जी महाराज जी, आप बता दें प्लीज। हाँ वो ऐसा है हाँ कि समाधि तो उच्चतम स्थिति है। जी जी। उसमें दो प्रकार की, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि। विकल्प समाधि जी। उसके नीचे बहुत सारे दर्शन होते हैं। अच्छा नेत्र से हमने भगवान को देखा, हाँ कानों से हमने ओंकार को सुना, जी हृदय में एक संवेदन हुआ, हृदय में किसी का हृदय में अपने इष्ट का दर्शन हुआ। हाँ इस प्रकार के बहुत सारे दर्शनों का वर्णन शास्त्र में किया गया है। राइट जी। अच्छा, उसके अंदर ये दर्शन, ये यौगिक विजन का मीनिंग ये तो निकला है? वही योग के अभ्यास के प्रैक्टिस के द्वारा। पातंजल, यो सुनो, हाँ हाँ पातंजल योग सूत्र में जी तीसरा अध्याय है विभूति पाद, पहला है हाँ साधन पाद, समा समाधि विभूति। विभूति पाद। हाँ तो तुम जरा दिखा ले, उठा के देख लेना उसको। विभूति पाद के अंदर कितनी विभूतियां, कितने दर्शन होते हैं, 15 20 25 पता नहीं कितने बताए गए हैं वहां पे। जी 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 बहुत विभूति। सारे वर्णन बताए गए। ओके जी महाराज जी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 7। महाराज जी, हाउ देवेंद्रनाथ टैगोर वाज कंपेयर्ड विद किंग जनक? क्या कंपैरिजन करने का क्या कारण था? और तो इनमें मतलब ये है सिमिलरिटी, कि सिमिलर। जनक जो है ना, सुनो, राजा जनक, हाँ जनक जो थे राजा थे, हाँ राजा थे। और सुबह उनको बढ़िया खाना मिलता था, ब्रेकफास्ट जी मिलता था बढ़िया, हाँ हाँ बिल्कुल। और दोपहर को बढ़िया भोग मिलेगा, हाँ शाम को मिलेगा, अच्छे गद्दे पे सोएंगे, बढ़िया गद्दे पे सोएंगे, हाँ इधर उधर जाएंगे तो रथ में बैठ के जाएंगे, हाँ वो तो बराबर। कितने सारे भोग मिलेंगे। हाँ और उसके बावजूद वो बड़े योगी भी थे। जी थे। ये देवेंद्र भी जो है, देवेंद्र के जीवन में भी यही था, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, ये देवेंद्रनाथ टैगोर के जीवन में भी यही सब थे। और यार उनका भी भोग था,
हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। शादी हुई थी, संसार में रहते थे, लेकिन योग कर। बराबर जी, यही जानना था मेरा। हाँ, नाउ पेज नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 8। आई हैव said whatever came into my mind. Take as much of it as you wish. You may leave off the head and the tail. महाराज जी, प्लीज एक्सप्लेन दिस सेंटेंस। गुजराती में पढ़ो क्या लिखा है। हाँ, बताता हूँ गुजराती में। 150। बांग्ला में एक्सप्रेशन है लेजा मुड़ा, जी यानी सिर पैर। हाँ, हेड एंड टेल। एक मिनट महाराज जी। 356 156 में ये दिया है। लेजा मुड़ो बात दिए जतटुकु नहीं मारा नहीं, वो मन तो में जे कहीं अरे महाराज जी। बांग्ला, नहीं एक नहीं, गुजराती देखें हाँ, कि लिखे थे। हम गुजराती में ये लिखा हुआ है। मेरे मन में जो आया वो मैंने कहा, और तुमको जो समझ। महाराज गुजराती में मछली नहीं अरे खाते हैं। चुप रहो ना, निवेदिता चुप रहो। महाराज, यहाँ लिखा है गुजराती, यदि मैं पूरा पढ़ दूं तो मारा मन में जे कहीं આવ્યું હતું તે તમને કહ્યું, એમાંથી તમને ઠીક લાગે એટલું સ્વીકારજો, એના माथा पूछड़ानी बात बाकी करी नाखजो। महाराज जी, इसका मीनिंग ये होता है कि मैंने को जो कहना था वो मैंने कह दिया, तुमको जो एक्सेप्ट करना था वो एक्सेप्ट करो, बाकी की चीजें उठा के फेंक देना। ठीक है, यही तो बोला, और क्या। सीधी बात है, इसमें क्या है, तुम सिर सिर और पैर के, सिर को और पैर के लेके झगड़ा कर रहे हो। सीधी लिखा हुआ है ये, जरा जरा ये कोई क्वेश्चन है। जो तुमको ठीक लगे वो ले लो, जो को ठीक को नहीं लगे उसको छोड़ दो। इसके ऊपर तुमने क्वेश्चन बना लिया, नहीं ठीक है। नहीं नहीं महाराज जी, और सिर और पैर के ऊपर आप लेके क्वेश्चन बना रहे। महाराज जी, ठीक है। नहीं नहीं महाराज जी, डांटो मत जरा आप। ये मेरा सवाल, मेरा प्रॉब्लम क्या है वो आप देखें कि Kesav's followers could not comprehend the master's ideas and teachings because those devotees drank deeply of Western ideas. They might have understood some of what he said, but they did not want to accept all of it. Keeping this in mind, after giving them instructions, the master would often say, हाँ, तो हाँ, अरे यस, बहुत सारे दिमाग में बहुत सारी विदेशी बातें हैं। फिलॉसफी, विदेश में बहुत सारी फिलॉसफी है, ये सब पढ़ लिया है। और हाँ इसलिए जो ठाकुर ने बात कही ना, वो हाँ उनको थोड़ी समझ में आती है, थोड़ी पे आर्ग्यूमेंट करते हैं। लेकिन 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 क्योंकि ये उन्होंने फिलोसफी, वेदा फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ा है। लेकिन ठाकुर बोलते थे, अरे बाबा, तुमको जो ठीक लगे वो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। छोड़ दो, चलो, सीधी बात है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट लाइन। मास्टर, have I seen one in who has attained perfection in all paths and modes? It is new in the religious history of the world. महाराज जी, what are all paths of and modes? मोक्ष के कितने मार्ग हैं। हाँ तो वैष्णव धर्म है, शाक्त धर्म है, शैव धर्म है, इस्लाम धर्म है, मुस्लिम धर्म है, और उसके बाद क्रिश्चियन धर्म है। ये हाँ, कितने सारे मार्ग हैं भगवान पे ठीक। जाने के लिए। अब क्या मुझको चाहिए, उसको प्रश्न होता है। और हिंदू धर्म में कितने धर्म है, शाक्त है, शैव है, वैष्णव है, हाँ, तंत्र है। नहीं, ये इट ये इज, कित महाराज जी, इट इज न्यू इन द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है? जो श्री रामकृष्ण ने किया वो ये ऐसा है कि उन्होंने कई चीजों को, इनमें से सबने एक एक कर किया। किसी ने तंत्र किया, किसी ने वैष्णव किया, और श्री रामकृष्ण ने इतने सारे एक साथ किए। ये नया है। तो अब पढ़ो, इसको रामकृष्ण फिर से करो। जी, पढ़ता हूँ फिर से। I have been some great souls who had achieved perfection in their respective paths and modes, but only in यानी the, क्या है, मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो एक मार्ग से उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। मतलब have seen perfection in the
in the master have I seen one who has attained perfection in all paths and modes. हाँ, मैंने it श्री is रामकृष्ण में देखा है कि उन्होंने सभी मार्गों से सिद्धि प्राप्त की है। अच्छा, yes. मैंने दूसरे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने एक एक मार्ग से सिद्धि हाँ, प्राप्त की है। जी, श्री रामकृष्ण ने सभी मार्गों से प्राप्त की है। ओके, राइट। अच्छा, तो महाराज जी अवतारों के अवतार कह रहे हो, अवतार वरिष्ठ हो गई है, अवतार। हाँ, अवतार वरिष्ठ हो। यस, दैट इज। हाँ, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अब नंबर ये 10। वो डिफरेंट मार्ग, सब मार्ग समझ में आया कि नहीं में आया? हाँ, आगे आगे सब मार्ग, और सब मार्ग के अंदर इनको सिद्धि प्राप्त हुई है। सिद्धि प्राप्त हुई है। क्वेश्चन 10, पेज नंबर 135। महाराज जी ये पूरा पेज तो पढ़ने का सवाल। महाराज जी, द कंप्लीट पैराग्राफ इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्टेरिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर अ स्पिरिचुअल पाथ। ये ठीक है। हाँ हाँ, तो तुमने तो क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, तुमने स्टेटमेंट किया। हाँ, बराबर है ये। तो श्री रामकृष्ण के बाहरी जो है आडंबर, उन्होंने हाँ, साधना की, तब कोई साधना की, तब पूरी तपस्या की थी, अच्छा 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 अच्छा, लेकिन उसके बाद आराम से रहते थे। हाँ, अच्छा, सिद्धि प्राप्त होने के बाद। सिद्धि प्राप्त होने के बाद आराम से रहते थे। ओके। महाराज जी ये बराबर है, पर जैसे जैन धर्म के अंदर तो इनको थ्रू आउट लाइफ ऑस्टेरिटी में ही रहना पड़ता है। हाँ, तो श्री रामकृष्ण तो जैन जैन नहीं थे। नहीं 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 थे, पर यानी ये मैं पूछ रहा हूँ, ये दोनों में ये फर्क है। हाँ, फर्क है तो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 136। महाराज जी, नथिंग कैन बी अचीव्ड और डन विदाउट द ग्रेस ऑफ गॉड, देन व्हाई साधक अंडरगो स्ट्रेनियस एंड ऑस्टेरिटी ऑफ लाइफ, व्हाई? कृपा, अरे कृपा की कृपा है ना, वो तो दूध है जो भगवान ऊपर से डाल रहा है, बढ़िया फ्रीली दे रहा है। लेकिन कप कृपा को लेने के लिए तुम्हारे पास कप तो है नहीं। बराबर कृपा जी। को प्राप्त करने का बर्तन है क्या तुम्हारे पास? नहीं, बर्तन बर्तन बनता है साधना के द्वारा। ओके कृपा की वायु तो हमेशा बह रही है, जी, लेकिन आप नदी में, समुद्र में जाता नौका चला रहे हो, वायु हाँ, बह रही है, पाल तो तानना पड़ेगा, नहीं तो जी हवा चली जाएगी, तुम्हारी नौका नहीं बढ़ेगी आगे। जी जी, अच्छा, बराबर महाराज, राइट। बिना क्रिया ने, पुरुषार्थ के बिना कृपा का लाभ भी नहीं होता, खुद मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा जी, और दूसरी बात भी कही गई है, हाँ अगर तुमको ये लगे कि मैं मेहनत करूं, खूब तपस्या करूं, 1000 जब रोज करूं, तब हाँ, समझ लो कि आपके ऊपर कृपा हुई है भगवान। अच्छा अच्छा, ये आपके मन ठीक। में अगर साधना की इच्छा उत्पन्न होती है तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, कृपा का मतलब ये नहीं कि जो मर्जी में हमारे को कृपा नहीं हो रही तो कुछ नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे, कृपा नहीं हो, अपने आप कृपा हो जाएगी, हमको दर्शन हो जाएगा, कुछ नहीं होता। जी, कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, तब भगवान की कृपा होगी, तब उसको पकड़ भी सकोगे। अच्छा हाँ, जी ये तो महाराज, कृपा तो आ ही रही है, सबके ऊपर भगवान की कृपा है, कोई तो आगे से आधा साधना करके आगे बढ़ जाता है। हाँ और कृपा कृपा भगवान क्या, ऐसा है कि दिलीप भाई पे कृपा कम करेंगे और ब्रह्मेशानंद पे ज्यादा कृपा करेंगे, ऐसा है क्या? तो सब पे कृपा कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ सिर्फ कटोरे का लेकिन फर्क एक है। एक 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 साधक जो है खूब तपस्या करता है और आगे बढ़ हाँ, जाता है, वो बराबर कृपा को उसने पकड़ लिया है। वो बराबर, कृपा की जो वायु है उसने उसने अपना पतवार तान दिया है, तो उसकी हाँ नौका हाँ, जो है तेजी से जा रही है। जी जी, और दूसरे बैठे हुए हैं, पतवार को ताना नहीं है, बोले कृपा आएगी, कृपा आएगी, कृपा आएगी। हाँ, अरे कृपा आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, रोज जी, आती है चली जाती है, कुछ नहीं करते सारा जीवन। अच्छा, बराबर, जी 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 महाराज जी, जी बिल्कुल। महाराज जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इवन द सेजेस व्यास एंड वाल्मीकि कुड फाइंड नो वर्ड्स टू मेजर हिज ग्लोरी। महाराज जी,
व्यास और वाल्मीकि रामकृष्ण देव के पहले हुए हैं। अब यहाँ ये अरे लिखा है व्यास, और यहाँ तक कि अगर व्यास और वाल्मीकि भी होते तो वो उनके वर्णन नहीं कर पाते, यह करना अर्थ है। यानी इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित भी जो हैं हाँ वो श्री राम कृष्ण की महिमा का वर्णन नहीं कर पाते। आज अच्छा के पंडित कृपा यानी आजकल के व्यास और वाल्मीकि भी श्री राम कृष्ण की वर्णन नहीं कर पाएंगे उनकी महिमा की। महिमा की बराबर। अच्छा और महाराज जी दूसरे 3 मैंने दिए हैं, पढ़ दो क्या? अब पढ़ दो। हाँ। It is true that only an avatar knows his real nature. Now, Maharaj ji, here my question is, if it is so, then 15 inner circle devotees knew Ram Krishna as avatar. यहाँ पे ये उनमें रामकृष्ण ने अपनी शक्ति संचार की तब वो समझ सके। उन्होंने थोड़ा सा अवतारत्व उनको दे दिया था इसलिए वो समझ सके। अच्छा हाँ 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 राइट जी महाराज जी। Next question. Without knowing avatar, how devotees can come near him and see in him God? नहीं तो अवतार को ये इंटेलेक्चुअल समझने से ही हो जाएगा। अच्छा तो ये 15 लोगों को तो इन्होंने कुछ शक्ति दे दी थी, इसके कारण वे समझ पाए। हाँ थोड़ा समझ जाएगा। Okay. Now, last question. If one realizes a spray from the ocean of his spirituality, one instantly becomes a god. Such a synthesis of universal ideas you will not find in the history of the world again. Understand from this who has born in the persons of Sri Ramakrishna. पेज नंबर बोलो। हाँ पेज नंबर 143 एक मिनट जी। हाँ 143 का सेकंड पैराग्राफ का आखिरी 3 लाइन है। If one realizes, Yes, a spray from the ocean of spirituality, one instantly becomes a god. such synthesis of universal ideas Yes, you will find in the history of the world again. Understand from this who was born in Sri Ramakrishna. yes. Therefore, one has to speak about him with caution. क्या करना है? स्वामी जी किस दृष्टि से बोल रहे हैं? जो उन्होंने चैतन्य के बारे में बात कही, उन्होंने तांत्रिक साधना की बात कही, और उसके बाद में श्री रामकृष्ण की महानता के बारे में कह रहे हैं। He was the concentrated embodiment of Yes. how many, कई अवतारों के वो घनीभूत विग्रह थे। हाँ यानी सारा जीवन साधना करने के बाद में भी उनको समझना अत्यंत कठिन था, जी। इसलिए उनके बारे में बोलने में सावधान रहना चाहिए, जो मर्जी Yes. में नहीं बोलना चाहिए। इफ इस वो एक थोड़ी सी भी यदि स्प्रे यानी थोड़ा सा भी उनको उनकी उनकी कृपा का कि जरा स्पर्श भी मिल जावे, और उनका समुद्र आध्यात्मिकता के समुद्र की एक बूंद भी हमको मिल जाए ना, तो हम जी भगवान बन जाएंगे। ऐसा यूनिवर्सल आइडिया, नाना विभिन्न प्रकार के सर्वव्यापी भावों का सिंथेसिस यानी उनका समन्वय, यह हिस्ट्री में व संसार के हिस्ट्री में दिखाई नहीं देता है। यस सर। इसलिए पहचानो कि श्री रामकृष्ण कौन थे। ये उसका मीनिंग है, मतलब यह है कि वे श्री हाँ रामकृष्ण अवतार वरिष्ठ थे, उनमें अनेक भावों का मिलन। बराबर जी। अच्छा राइट महाराज जी चलिए, प्रणाम। जी नेक्स्ट प्रणाम। कौन है? कुंडू हाँ है कि नहीं है? महाराज जी मैंने बहुत पहले पूछा है सोमवार को। पूछिए। नहीं बहुत पहले कौन मैंने। बोल रहा है? कौन बोल रहा है? देवाशीष? हाँ बोल, पूछो। देवाशीष। हाँ पूछो पूछो। हाँ। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 पेज 140 the master said it will be enough if you know who am I and who you are and
else are necessary. In other words, he is God and has come as avatara, and the devotees are his parts or companion. If the devotees know this, they will never be entrapped in Maya. How does it work? My question is, how does it work that the devotees will not be entangled by Maya? अच्छा देखो सुनो, अभी तुम क्या समझते हो अपने आप को? अपने एक देवाशीष शाह समझते हो तो बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स हो, तुम्हारे फादर मदर हैं, जी महाराज जी, तुम जॉब करते हो, ये सब समझते हो ना अपने आप को? जी महाराज। यहाँ ये कहते हैं ये मत समझो, अच्छा, तुम ये समझो कि तुम श्री राम कृष्ण के शिष्य हो, श्री राम कृष्ण के अंश हो, श्री राम कृष्ण के मानव अंश हो, यानी कितने बड़े हो गए या सोचो। जी अपनी आइडेंटिटी चेंज करना ये आध्यात्मिक जीवन का सबसे महान इंपॉर्टेंट पार्ट है। इतनी जूम मीटिंग के बाद में भी लोग नहीं समझते। अब ये मत समझो कि तुम देवाशीष शाह हो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप। और स्वामी विवेकानंद बार बार बोलते हैं इस चीज को, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। जी महाराज जी। और क्या बोलते हैं स्वामी जी? द मैसेज माई गोल ऑफ माई लाइफ इज टू टीच एंड टू मैनकाइंड देयर डिविनिटी। यही है ना स्वामी जी का मैसेज? जी महाराज। तब always every day morning evening think that you are divine, you are divine, you are divine. जी। Now it is difficult to have divine, then you can connect with Ramakrishna. I am the son of Ramakrishna, I am a disciple of Ramakrishna, I am not a Devashish Saha. जी महाराज। This is very important. जी महाराज जी। That is how the Maya will vanish. अरे वो बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा मॉर्निंग इवनिंग। जी महाराज जी। हाँ। So this is not applicable to only 16 disciples. This is applicable to all of us. Everyone. जी महाराज जी। Okay. जी महाराज जी। Question number. अच्छा सुनो, हाँ। Can we have a break of 2 minutes because the battery is getting low? I will have to connect it with the battery. Just a minute. जी महाराज जी। संजय जी 2 मिनट का सवाल आया है। सब बंद हो गए। जी बोला जाए। मैं ये कह रहा था, ये 2 मिनट का टाइम है अपने पास, तो जो महाराज जी का एक प्रॉब्लम था उसके बारे में विचार करवा दीजिए ना। तो आप बताया जाए ना, सब लोग 2-3 लोग चले गए हैं। हाँ, पर किया जाए हम लोग चर्चा। हाँ, महाराज जी का ये कहना है कि सवाल कम आ रहे हैं और कम साधक लोग ये भेज रहे हैं। आपका तो सवाल, आपका 11 सवाल था आज, कम कहाँ हुआ? क्या है? आपका नहीं, तो नहीं 11 सवाल थे। नहीं, मेरे तो 14 थे, 11 नहीं। हाँ, नहीं, सवाल वो 11 नहीं है। सवाल मोर देन एनफ है। नो, मेरा ये महाराज जी का ये कहना है, इट्स नॉट माय क्वेश्चन। महाराज जी सेज दोनों साथ है, हम उसके नहीं। जितने लोग आ रहे हैं, जितने अटेंड कर रहे हैं, उनमें से सवाल नहीं आ रहे हैं। क्या कारण है? क्या उनको इंटरेस्ट नहीं है? क्या इसका तरीका बदला जाए? या यही तरीका चलने दें या इसमें कोई चेंज करना है? उनका कहना यह है कि एवरीवन मस्ट पार्टिसिपेट बाय आस्किंग द क्वेश्चंस। देखिए, सारे लोगों ने सवाल तो पूछेगा नहीं,
अच्छा, बट दूसरे बात है कि मतलब आप भी सवाल थोड़ा कम ही पूछा कीजिए। 11-14 सवाल जो है, यू आर मोनोपोलाइजिंग द टाइम, ये भी तो सोच लीजिए। हाँ, ये बात बराबर है, यही मैं भी सोच रहा हूँ एंड कि सेकेंडली आई थिंक इफ द क्लास गोज फॉर 1 hour 10 minutes 15 minutes इट शुड बी इनफ। ओके। ये हाँ तो पढ़ना है, समझना है, रियलाइज करना है, थोड़ा बहुत जो सवाल है महाराज एक्सप्लेन कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज इनफ। ओके। तो अपन महाराज जी से, अच्छा दूसरा एक ये है कि अपन ये भी कह सकते हैं कि 1 घंटा 10 मिनट चलाओ जूम मीटिंग। नहीं नहीं, वो कहने की जी। जरूरत नहीं आएगी। बात है कि अगर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं नेचुरल वे में तो थोड़ा लेट हो जाएगा, तो किसी को दिक्कत नहीं है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट। पर अगर कम भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। क्योंकि क्या है, जैसे कि अब ये आप लोग मतलब जब मैं पढ़ा ये आर्टिकल तो मुझे कोई सवाल ही नहीं पैदा हुआ, जी। क्योंकि मैं तो एक पढ़ते पढ़ते एक ऐसी खुशी में चला गया हाँ कि वहां जो सामने है वो सब जैसा का है वैसा मन लेता जी, गया, करेक्ट करेक्ट। उसमें कोई विरोध नहीं जमा। हाँ पर हाँ। अच्छी बात है कि जब आप लोग सवाल किए तो वो सवाल फिर मेरे दिमाग में भी आया और उसका जवाब भी मिला, तो एक क्लैरिटी हुई। तो सवाल जवाब की अपनी उपयोगिता भी है। पर अ, ये बात हो सकती है कि महाराज आग्रह करते हैं, वो सही है कि सभी लोग थोड़ा पढ़ें, और सिर्फ जूम मीटिंग में समरी सुन के और सवाल जवाब सुन के भी फायदा है। कम से कम ये एक रूटीन हो रहा है, पर सभी लोग पढ़ें तो जरूर ज्यादा फायदा है सबका, महाराज के मेहनत का सार्थकता ज्यादा है। मेरे ख्याल What we can do is each मेरे ख्याल में महाराज ये each one सोच of रहे us हैं can ask one or कि अगर सवाल नहीं आ रहे तो क्या लोग वाकई में सब पढ़ रहे हैं कि नहीं, ये भी तो पता नहीं चल रहा, तो उनको इसीलिए वो शायद कह रहे हैं। हाँ, रीता मैडम आप वीडियो बंद करके बोलिए तो आपकी आवाज आएगी। No, what I was saying was, can each one of us ask one question? यस। One question each. Suppose we have 15 attending, all 15 will ask 15 questions. Is that possible? ये सुझाव भी ठीक है, ट्राई करके देखा जाए, हर कोई थोड़ा कोशिश करके देखे कि क्या निकलता है। हाँ। नहीं, वी कैन नॉट लिमिट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसी के No, we cannot. I mean, at least minimum one and मैडम maximum 3. बोलिए। आपने क्लास लाइक हम लोग सबके थोड़ा बहुत टीचिंग एक्सपीरियंस तो है। क्लास में अगर 40 लड़के हैं तो 40 का अटेंशन 40 टाइप का होता है, और उसमें yes, 25% ही सवाल पूछते हैं। लाइक जैसे मतलब अभी संजय जी ने बोला है, जरूरी नहीं है कि सवाल नहीं पूछ रहा है तो इसके मतलब जो है वो उसका आनंद नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात है कि मैकेनिकली कोई सवाल पूछे वो भी उसका कोई ज्यादा उपयोगिता नहीं होगा। एंड थर्डली, we all have come voluntarily and it is incumbent on us, our sincerity। देखो इसमें no one is forcing us, इसमें कोई मेरा प्रमोशन नहीं है, मतलब मैं जितना आगे बढ़ूंगा मैं ही बढ़ूंगा, वो आप ना ले सकते हो ना दे सकते हो। बिल्कुल सही। तो उतना सबकी सिंसियरिटी के ऊपर भरोसा तो करना ही चाहिए कि अगर कोई रीडिंग मटेरियल जा रहा है तो हफ्ते भर पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत सोच रहा है, एंड 16-20 आदमी हर जूम मीटिंग में ज्वाइन कर रहा है, ±4-5 का अपना काम होता है। मैं ये बोल रहा था 1 घंटा 10-15 मिनट से ज्यादा टाइम देना हम लोगों के लिए मुश्किल होता है। लाइक समवन सेज दैट आई हैव टू गो हियर, आई हैव टू गो देयर। 1 घंटा आई थिंक इज इनफ, गुड। ये सॉरी कुंडू जी,
Monday morning, Sunday morning, everybody is bothering me. I'm not sure 1 hour, 10 minutes is enough, because what happens is by the time people join, it is 5-10 minutes नहीं उसमें नहीं लग जाता है. मीन्स वही उतना 20 minutes, ये another 20 minutes to give the summary. तो आधा घंटा तो ऐसे ही बीत जाता है. तो इसका मतलब 45 मिनट में सारे सवाल कवर करना may not be possible. So I would say at least 1.5 hours. आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब. हम लोग को थोड़ा सा, अब समर है, अब वेदर भी वैसा नहीं है, तो हम लोग प्लान कर सकते हैं कि हम लोग टाइम पे ज्वाइन कर लें. तो टाइम वो एक अच्छी चीज हो जाएगी, एक अच्छी डिसिप्लिन हो जाएगी कि एक गुड नंबर अगर ज्वाइन कर लिया तो वी स्टार्ट टाइम पे, तो दैट विल बी गुड. People can join. मेरे शुरुआत मेरे में मेरे तो मेरे 5 यही मिनट्स कहना में है कि महाराज ज्वाइन कर और लेते. कुछ हम लोग स्पिरिचुअली बेशक प्रोग्रेस ना करे, इतना सिंसियरिटी बढ़ जाए अपना, और इतना पंक्चुअलिटी हो जाए, थोड़ा डिसिप्लिन हो जाए, और अगली जन्म में बाकी हो जाएगा. वेरी राइट, वेरी राइट. अगले जन्म देख. नहीं, किसी का क्वेश्चन आया अगला जन्म मिलेगा कि नहीं. कौन सा मिलेगा? बस अगला जन्म जो भी मिलेगा, फिर एक इंसान का जीवन मिलेगा, इसलिए चिंता नहीं है. बस बस बस. ये ना सुनते मिले रहने भी. के कारण, ये सुनते रहने के कारण कैसा भी कर्म करेगा फिर इंसान बनेगा. नेक्स्ट जन्म में नहीं मिले तो 100 जन्म बाद भी इंसान का जन्म तो मिलेगा. But we cannot remember now what we were in the last birth. So everything is now. दिलीप भाई, everything is now. पिछला जन्म भी अब है, आने वाला जन्म भी अब है. वेरी राइट, यू आर वेरी राइट रीता जी, वेरी राइट. कि यही सोच के जीना है बच्ची जिंदगी, कि यही आखिरी. वो सोच के जीना है तो 9 बजे ज्वाइन भी तो करना है ना. अरे ज्वाइन तो करना है. 9-10 नहीं होना चाहिए. 9 बजे आ जाता भाई, ये डर के. कुछ एक बार जी ने बोला है कि अगर कुछ पता परेशानी चले लगी कि तो देर हुआ. उसके बाद ये देर की आदत बन गई. पहले तो हम लोग सब लोग टाइम पे ज्वाइन करते थे और 9:05 तक महाराज भी ज्वाइन कर लेते. उतना सिंसियरिटी तो होना चाहिए. बाकी माँ ने तो गारंटी दे दिया कि ये अगली जन्म आखिरी जन्म है, ठाकुर के पास आ गया, और चिंता करने की कोई बात नहीं. Today I was trying from 5 to 9. 9 बजने को 5 मिनट था, but I was not getting through. I thought it was my network problem. But anyway, 9:05 तक मिल गया. मैंने आज मेरी तरफ से लेट हुआ कि मैं 9:05 में एडमिट करना शुरू किया. ओके. हाँ, तो मैं भी ठीक करूंगा, और हम लोग 9 o'clock के पहले ही स्टार्ट कर देंगे, 2-4 मिनट पहले, ताकि सब लोग 9 o'clock 2-4 मिनट पहले इज ऑल राइट. पहले मैं 5 मिनट पहले स्टार्ट करता था. पहले करते थे. और 5 मिनट में होते होते महाराज को हम लोग बुला लेते थे, 12 लोग आ जाते थे तब. टुडे वी वर 16. यस. हाँ, अभी 3 लोग चले गए हैं. महाराज क्या चले गए? आई मीन इज गॉन समवेयर. उनका बैटरी में प्रॉब्लम है, तो ही विल ओहो, इवन माय बैटरी इज रनिंग लो. My battery is also running low. Anyway, I think it will last for another few minutes. आप भी चार्जर लगा लीजिए. हाँ, that's what I'm doing.
Only I have to go upstairs, Sanjay ji. Let me see if there's someone who can get it for me. ये कौन सा साग है? तुलसी पत्ता? नहीं नहीं, बथुआ. 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 Oh, we get lots of बथुआ in our garden. आज प्रभा नहीं है यहाँ, तो so cooking is your duty. हाँ. So how will you cook बथुआ? वो मैं उससे फोन करके पूछ लूंगा. No, just cut one aloo. If you are eating aloo, one aloo into chop into small pieces. Bangan into small pieces. Little bit of onion and a little bit of लहसुन, कुटा हुआ लहसुन. So तेल में लहसुन पहले डाले, प्याज डाले, then when it becomes a little red, पंचफोरन डाले, then you put in the aloo and cover it with little salt. After aloo is half cooked, put in the bangan and saag together. Okay. And little more onion. Simply cover it with medium flame. मुंह में पानी आ गया, मुंह में पानी आ गया सब्जी का. नहीं, this is my how my mother cooks बथुआ. बहुत अच्छा लगता है. हाँ. चलो. जब स्वामी जी आते हैं तो प्याज वगैरह नहीं डाला जाता है. जी. Because he doesn't take onion, garlic, ginger, nothing. So without that, we put only panchphoran and make it, and he likes it also. अभी हमारे बंगाली में एक सेइंग है जी, बामुन गैलो घर तो लांगुल तुले धर. क्या मीनिंग क्या? हिंदी होगा सर. जिसका मतलब है when the master is away, the children जो मर्जी कर रहे हैं. Yes. तो ये एक इंग्लिश में एक कहावत है कि when cat is out, rat his own play. वही है, वही. In Odia they say बाघ नथिले मिरिग नाट. माने when the tiger is away, the deer play. Deer play. Yes. ए झ म चार्जर काढून. प्लीज एकदम सरीगलानी. स्वामीजींकर बैटरी रन आउट ହେଇଗଲା. सब डिस्कशंस हो गए. ना अन्नपूर्णा last 2-3 days she has not been keeping well. थोड़ा वॉमिटिंग हो रहा है, येलोइश टाइप का वॉमिटिंग. Then one pediatrician gave her some antibiotics and one syrup, and this is completely averse to taking that. So today I asked our homeopathy doctor. He has given. After taking that, she is able to get up and move about. I think she has been eating too much of fast food. We have to stop. सब डॉक्टर्स को I have told what we are going through. क्या करे, वो बच्ची है, कुछ सुनती नहीं है. संजय जी नियो तो बंद करें. एक मिनट, रिकॉर्डिंग में पॉज नहीं किया जी. ओहो, तो ये सब रिकॉर्ड हो गया. हाँ, बथुआ रिकॉर्ड हो गया. कैसे बनेगी सब्जी? दैट्स गुड. अब इसको क्वेश्चन नंबर 2, पेज 143. मैं कोट करता हूँ. Some say that he was Sri Chaitanya, born on earth to preach Naradiya Bhakti. Some again that to understand spiritual practices is opposed to the faith in him as an avatar, while some are
opining that it is not agreeable to his teaching to take sannyasa. ये समझ में आया नहीं आया महाराज जी, ये क्या बोल रहे हैं? पेज 140। ऐसा है कि सभी लोगों ने अलग अलग लोगों ने श्री राम कृष्ण को अलग अलग ढंग से समझा। Various people according to their philosophical and religious understanding, they understood Shri Ramakrishna in a different way. किसी ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान भजन को श्री रामकृष्ण को मानने से हो जाएगा। किसने कहा नहीं, श्री रामकृष्ण ने कहा तपस्या करनी पड़ेगी। किसी ने कैसा कि वो चैतन्य है। इस प्रकार अपने अपने प्रकार श्री रामकृष्ण ऐसे थे, उनमें इतने भाव थे। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ वाज देयर, so many types of samadhis and sadhanas he has done, so people understood him in a different various different ways. तो अच्छा जी महाराज जी। थर्ड वन क्विकली मैं जाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन पेज में है, whoever has sincerely yearned for God has experienced these states and everyone doing must pass through them, unquote. My question is, does it divine vision, loss of outer consciousness, sleeplessness, burning session happen to all who's sincerely yearning for God? Not necessarily. यहाँ पे केवल कुछ को लिखा। The आध्यात्मिक, there are hundreds of spiritual experiences, and individual will, depending upon his sadhana, type of sadhana, he will get different types of experiences. Not necessarily. यहाँ पे तो 3-4 को लिखा है बस, और कुछ नहीं लिखा। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, विभूति पाद के अंदर तो बहुत सारा वर्णन है, पतंजलि योग सूत्र में मिल जाएगा। तो आप जिस मार्ग से जाओगे उस मार्ग के अनुसार आपको कुछ कुछ एक्सपीरियंस, everyone will give experience. That is the important point they are emphasizing. अच्छा, and these bhavs will automatically blossom in their thing, is it? And this if there is some experience, everyone will get. अच्छा, that is the point. अच्छा, okay. Question 4 page 1। यहाँ पे केवल 3-4 चीजों का पॉइंट किया है, ज्यादा डिस्क्राइब नहीं। अच्छा, so divine visions, loss of outer consciousness, sleeplessness, जो ठाकुर there are different, वो अलग प्रकार का। मतलब someone have हृदय के आनंद का अनुभव होगा, किसी को आनंद का अनुभव होगा, किसी को ज्योति का अनुभव होगा, किसी को साउंड का अनुभव होगा, इस प्रकार। तो महाराज जी, जो जितने लोग माने खास करके जितने संन्यास लिए हुए हैं, मॉन्क्स जितने हुए हैं, इतना दिन से साधना कर रहे हैं 40 साल से, सबको कुछ ना कुछ होते रहते हैं। इसका मतलब संन्यास लेने मात्र से नहीं होता है। साधना करना एक अपने आप में एक अलग बात। हजारों में से गीता ने क्या कहा है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे। हजारों लोगों में एक आध हैं जो साधना करते हैं, और जो साधना करते हैं उनमें भी हजारों में से एक आध को अनुभव होता है। तो ऐसा मत समझ लीजिए कि रामकृष्ण मिशन के 250 साधु हैं तो सब के सब सिद्ध हो गए, किसी को नहीं हुआ कुछ भी। कुछ आसान नहीं है, कुछ तो होता होगा। जो अब आप छोड़िए उस बात। अच्छा, ठीक है। खुद अपने स्टेट पे हैं आप, सिंसियरली करिए, कुछ ना कुछ छोटा मोटा आपको आवश्यक। जी महाराज जी, थैंक यू महाराज जी। क्वेश्चन नंबर 4, it is said in the passage that all the pandits who declared Sri Ramakrishna an avatar were deeply spiritual. My question is, what does it mean to be deeply spiritual? Have they experienced the state Sri Ramakrishna has passed through? No. Deeply spiritual यानी understanding, spiritual understanding। पहला तो एक तो साधना करते थे वो, दूसरा इंटेलेक्चुअल, पंडित होने के कारण इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी उन। जैसे पतंजल योग सूत्र है, तो पतंजल योग सूत्र में कोई पंडित है, तो उसका पंडित होने का मतलब ये तो नहीं कि विभूति पाद में बहुत सारे जो दर्शन बताए गए हैं वो उसको हुए हों। अच्छा, लेकिन जब वो ठाकुर को देखेगा तो अरे ये तो, इसमें तो जो विभूति पाद में जो वर्णन है सब मिलते हैं इनके ठाकुर में। तो खुद नहीं जान, खुद इंटेलेक्चुअली जानता है। अच्छा, एक्सपीरियंस। लेकिन वहां तो देख रहा है कि अरे मैं तो इंटेलेक्चुअली देखा है, वो यहाँ ठाकुर के अंदर दिखते हैं। अच्छा, जी महाराज जी, इस प्रकार। हाँ जी महाराज। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन महाराज जी।
एक ये क्वेश्चन मेरा मन में जगह है कि भाई, हाउ डिड केशव चंद्र सेन ब्राह्मो डिवोटीज अंडरस्टैंड श्री रामकृष्ण एज गॉड एंड वर्शिप्ड हिम साइलेंटली इन हिज रूम? ये तो वो तो वेस्टर्नाइज था, उनका तो डिफरेंट व्यूज था, लेकिन वो कैसे ऐसा है कि वो भी वो जो वो था ना, वो साधक भी था, he was a साधक also, but he never used to. इसलिए intellectually he understood Western philosophy. Yes. इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, क्रिश्चियनिटी इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंड किया, लेकिन वो एक ब्राह्म समाजी साधक था। साधना से उसमें इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आ गई थी, इसलिए ठाकुर को वो पहचान सकते। लेकिन they never used to believe in avatar, never used to believe in. No, it is the question of साधना। वो क्या लिखा है वहां पे, और ये क्या बोला है, क्या लिखा वहां, क्या लिखा है कि उसने पहचाना, क्या पहचाना, ये बहुत बड़े महापुरुष। God उसमें ये भी पहचाना होगा, उसने पढ़ा होगा ना अवतार आदि के बाद में भी वर्णन उसने देखा होगा। हाँ, किताबों में लिखा हुआ है। हाँ। तो उसने मानी मन माना होगा कि अवतार है, लेकिन वो ओपनली नहीं बताया, क्योंकि उसका मेरा जो है ब्राह्मण समाज का है, वो तो अवतार नहीं मानता। जी महाराज जी। तो ये उसमें कई जगह पे शारदानंद जी ने इसको डिस्कस किया है कि अच्छा। वो एक्सटर्नली मैंने बोलता नहीं था, लेकिन इंटरनली ठाकुर को अवतार मानता था। अच्छा। हाँ, एक्सटर्नली बोलता तो उसका ब्राह्मण समाज का जो ब्राह्मण मत जो है उसका विरोधी हो जाता। जी महाराज जी। ये लिखा है महापुरुष शरद महाराज ने लीला प्रसंग में कही। जी महाराज जी। ओके, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। अच्छा, आइए, अब कौन बचा है? भुवन है, चले गए क्या? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ। वैष्णव चरण said that Mahabhav has 19 spiritual moods. So, can you explain what those 19 moods are? No, I can't explain it because they are all very technical. और ये वैष्णव Yes. ये जो अपने वेदांत, ये अपने वैष्णव धर्म के जो टेक्निकल किताबें हैं उसके अंदर है। जैसे मैंने कहा कि वो हाथ पैर का कांपना, आंखों से आंसू आना, हाँ, खड़े खड़े रह जाना और भूल जाना, कानों में ध्वनि आना, साउंड सुनाई देना, इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग ये होते। हाँ जी। वो उसको कहना मुश्किल है और फिर उनको जानने से कोई फायदा भी नहीं है। yes. सेकंड, हाँ। हाँ जी। So some people did not believe Sri Ramakrishna to be an avatar, but were later transformed into सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक से recognizing बोलो, the तुम्हारा master's पॉइंट, एंगल divinity. ठीक करो, एंगल ठीक करो, नहीं सुनाई दे। वीडियो ऑफ कर अच्छा। दीजिए, वीडियो ऑफ कर Some दीजिए। people did not believe Sri Ramakrishna to be an avatar, but were later transformed into recognizing the master's divinity. So if somebody doesn't understand the master's divinity, will it be of any disadvantage? नो डिसएडवांटेज। अरे साधना तो करो, श्री रामकृष्ण ने जैसा बताया है उस प्रकार की साधना करना ज्यादा जरूरी है। और ये भी जानो जी। कि एक ऐसी हाईएस्ट स्टेट होती है, उच्चतम स्टेट होती है, जो श्री रामकृष्ण को प्राप्त हुई थी। श्री रामकृष्ण अवतार हो या न अवतार हो, निर्विकल्प समाधि होती है, ये हुई थी। तो ये अवतार को मानना, इट इज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में अवतार के रूप में तो ठाकुर का प्रचार नहीं किया था। तो लोगों ने कहा कि आपने अवतार की बात क्यों नहीं बताई? तो क्या नहीं, आवश्यक नहीं है, वो मैंने जो बताया था उससे लोगों का उसी से कल्याण। ठीक है, चलो। फिर तीसरा क्वेश्चन है, श्री रामकृष्ण advised Sri Ramakrishna himself followed all the spiritual relationships such as das shant dasya sakha madhur vatsalya, all these bhavs, but as spiritual aspirants should we only stick to one? Yes, only one.
Yes. ओनली वन, ओनली वन। करेक्ट। श्री रामकृष्ण तो अवतार थे, वो पहले उसमें एक में एस्टेब्लिश हुए, उसके बाद में उन्होंने प्रैक्टिस की थी। वी होल्ड ऑन ओनली टू वन। Yes, Maharaj. फिर okay. Under Sri Ramakrishna's influence, the Brahmos introduced kirtan and prayers to the Divine Mother. So, could you explain how the kirtan and Divine Mother worship helps advance spiritually? क्या हुआ? These are various spiritual practices. तो डिवाइन मदर की प्रार्थना भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हुई। तुमको अच्छा लगे तो करो। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? मतलब ये कीर्तन और डिवाइन मदर वर्शिप से ब्रह्मोस को कैसे मदद मिली? क्योंकि कीर्तन और संजय जी ऑफ हो गया। मैं देखता हूँ महाराज हैं कि निकल गए। साउंड नहीं आ रहा। महाराज निकल गए हाँ, तो उनको वेट करना पड़ेगा। फिर मैं वीडियो बंद करूँ। इसमें क्या पूछने का प्रश्न है? अच्छा इसमें ठीक पूछने का है, क्या सॉरी। प्रश्न? नहीं नहीं, हाँ। हाँ मैं सोच ही रही थी। अच्छा फिर फिर नहीं आएगा तो हाँ। ओ सॉरी, इज इट ओके? लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि we see that on the in the text that Manmohan had to pray for his ailing daughter by visiting Sri Ramakrishna, right? So my question is, should we also pray for an ailing relative? Because क्यों नहीं? प्रार्थना करो ना, लेकिन ये सकाम भक्ति है, याद रखो। हाँ जी, संसार के सभी, एक व्यक्ति के लिए नहीं, संसार के सभी प्राणियों के कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रतिदिन प्रार्थना करो तो भगवान से ज्ञान भक्ति के लिए प्रार्थना करो, और उसके साथ में जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना करो। और कुछ एक दो अगर कोई बीमार हो तो उसके लिए प्रार्थना करने में कोई बुराई नहीं। हाँ जी, ये अपने को आपको निस्वार्थ बनाएगा। हाँ जी वेरी गुड। महाराज। इसी तरीके से अगर अगर कोई फैमिली में कोई ठीक नहीं आचरण कर रहा, तो फिर हम उसके लिए भी प्रेयर कर सकते हैं ना, प्रार्थना राधर कर देन? सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, कुंडू, ठीक है। कुंडू है क्या? चला गया सर। देखो संजय, देखो तो कुंडू है क्या? वो चले गए। अच्छा, तो वो अभी अभी गए। अब मालिनी के क्वेश्चन है क्या? मालिनी है? मालिनी भी नहीं है। मालिनी जी भी नहीं है। मालिनी ने तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, वो चली गई। वेरी गुड। अब ऐसा है कि सब लोग कहेंगे कि हमको पहले रखो, हमको पहले रखो, हम चले जाएंगे। दूसरे को नहीं सुनना चाहते हैं, खुद सुनाना चाहते हैं, ये कैसे होगा? जूम मीटिंग है तो फिर पूरे समय तक रहना चाहिए। हाँ महाराज जी, महाराज जी, हमें तो आपको सुनना है। नहीं, वो अब आप देखिए, वो लोग तो खुद को न तो सुनना चाहते हैं न सुनाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूं? क्वेश्चन जैसे भी हो, आपको सुनना है हमें। अब ऐसा है कि अब देख लो भाई, आप लोग डिस्कस करिए, मैं अभी बस सोच ही रहा था इसके बारे में। आप लोग, संजय पॉइंट ले लीजिए भाई, जूम मीटिंग संजय कितने जी, लोग ज्वाइन करते हैं, उसका कोई उसका कैटलॉग जैसा यह है कि उसको कुछ चेंज करना है या और कुछ करना है, जैसा चल रहा है वैसा चलने देना है कि नहीं करना है, ये आप लोग इस डिसाइड पे कीजिए। इस पे चर्चा हुई महाराज आज। हाँ। तो जब आप बैटरी चार्ज कर रहे थे तो सब लोग यही कहा कि जैसे चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है। और कभी कभी कम क्वेश्चन होने से अगर जल्दी सेशन हो जाता है तो कोई बात नहीं, और कभी ज्यादा क्वेश्चन से देर हो गया तो भी ठीक है।
फिर लोगों ने ये भी कहा कि एक सुधार हम लोग को चाहिए कि हम लोग ज्वाइन करने में देर कर दे रहे हैं। तो कई बार मैंने ही लेट शुरू किया था, तो कहना है कि 9 बजे से 5 मिनट पहले मैं स्टार्ट कर दूं जूम, और लोग ऐसे ज्वाइन करें कि 5 मिनट के अंदर सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, ताकि टाइम से शुरू हो जाए और फिर टाइम से काम खत्म हो जाए। और ये भी हुआ कि जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं वो तो अपनी वॉलेंटरीली अपनी इच्छा से ज्वाइन करते हैं, कोई एग्जाम या सर्टिफिकेट या कोई रूटीन तो पूरा करना नहीं है अटेंडेंस का। इसलिए अगर वो ये मान के ही चला जाए कि वो लोग पढ़ रहे हैं, और अगर किसी कारण से नहीं पढ़ पाए हैं कभी, तो भी उनको इस चर्चा से रुचि है चर्चा में, और चर्चा से लाभ वो कुछ ना कुछ ले रहे हैं। और जो लोग पढ़ रहे हैं उनको कुछ संदेह होता है, तो उनको एक मौका इस जरिए मिल जा रहा है कि वो समझ लेते हैं। और अगर किसी को ये भी होता है, जैसे मैंने ही कहा कि मैंने पढ़ा तो मुझे सब बहुत एक अच्छा भाव लगा, पर मुझे सवाल नहीं कौन था कुछ भी। पर जब दिलीप भाई और सब लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए तो दैट लुक्स इंटरेस्टिंग, तब वो सवाल अपने दिमाग में भी आते हैं। जैसा है ये कि एक तो कोई इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं, कुछ चीज समझ में नहीं आती है, और कुछ सचमुच एक साधना से संबंधित क्वेश्चन हैं। कई प्रकार के क्वेश्चन हैं और ये हम सब डिस्कस कर लेते हैं। जी जी। तो चलने देते हैं। आज कितने लोगों ने ज्वाइन किया? 16। अच्छा, तो धीरे धीरे मैंने ये कहा ना, इसलिए मैंने पूछा कि पहले 23 तक चले जाते थे, आजकल वो 15-16 हो रहा है। नहीं आज हम लोग का आज ही हो सके। पहले जी, हम लोग का पहले सब अच्छा चलता था तो हम लोग बहुत टाइम से शुरू हो जाते थे। अब वेदर वगैरह भी ठीक है, तो हम लोगों ने ये सुधार सजेस्ट किया है कि हम टाइम से शुरू करें, सब लोग जल्दी आ जाएं, ताकि किसी को वेट ना करना पड़े, और किसी को कहीं जाना भी है तो उसमें उनको समय के अंदर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। अब ऐसा है कि ये मेरी तरफ से कहना है कि भाई, अब सभी लोग कहें कि भाई हमारे क्वेश्चन पहले ले लो, हमारे क्वेश्चन पहले ले लो, ये भाई संभव नहीं। वो तो आप निर्णय करेंगे सर, महाराज जी आप नहीं नहीं नहीं, मैं देखिए, ऐसा है कि मैं तो निर्णय करूंगा, लेकिन प्रश्न ये है, इसका मतलब ये है कि किसी को कभी कभी कुछ जरूरत पड़ जाए, कुछ काम है कि भाई हमारे अपॉइंटमेंट है, तो एक बात दूसरी है। मतलब ये है कि उन्होंने केवल आधे घंटे मीटिंग अटेंड की है और पूरा नहीं किया है, केवल संडे होते हुए भी वो लोग आपको घंटा 1.5 घंटा नहीं ज्वाइन कर सकते। महाराज जी ये आपके ऊपर है, आप किसी जिसका आपका जजमेंट के ऊपर है, कौन ऐसा करता है नहीं करता है आप अच्छी तरह से जानते हैं महाराज जी। वैसे ही आप निर्णय कीजिए, जो करेंगे वही हम लोग ले लेंगे। कुड्डू जी अब तो ऐसा अभी है कि बोल के निकले हैं। It is कुड्डू जी अभी better अभी if बोल के we each try not to ask महाराज जी कि हमारा क्वेश्चन पहले लीजिए. Let us ourselves follow that discipline. That is more हाँ, important. एक आध बार किसी की जरूरत पड़ जाती होगी, कोई बात नहीं। हाँ, that should be only once in a while, not all the time. तो ठीक है फिर संजय, जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं। थैंक यू, महाराज। थैंक यू वेरी मच। But we'll try ठीक to है। ask you महाराज pertinent ठीक। questions. वो सॉरी, वो प्रणाम महाराज। शांति मंत्र, शांति मंत्र, क्या है? शांति मंत्र। हाँ, ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। निवेदिता कुछ ट्रेन में हो क्या?